Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 5, Natural Disaster. Let's start with MCQ first. Number 1. What is the place nearest to the focus of an earthquake on the surface of the earth called? ऐसी कौन सी जगह है हमारे surface of the earth पे जहाँ से हम फोकस कर सकते हैं कि earthquake हुआ है और उसे क्या कहा जाता है? Option number 1, earthquake center. Option number 2, epicenter. Option number 3, focal center. And option number 4, landslide center. So correct option is epicenter. The place nearest to the focus of an earth on the surface of the earth is called epicenter. In this picture, you can able to see where the epicenter is. It is on the surface of the earth. Now it is exactly above the hypocenter. Now this is your hypocenter and this is your epicenter. ये कहाँ पे होता है epicenter? Surface of the अर्थ पे. एपिसेंटर से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ से अर्थक्वेक हुआ है. नंबर 2, ड्यू टू हाउ मैनी रीजन्स आर वॉल्केनिक इरप्शन कॉज्ड? कितने रीजन्स के वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4. सो ड्यू टू 4 reasons volcanic eruption caused. Number 3. How many type of volcanic mountains are there? Option A 3, option B 4, option C 2 and option D 5. So how many types of volcanic mountains are there? There are total 3 type of volcanic mountains. Number 4. What is the approximate length in kilometers of a tsunami waves? Option number 1 800 to 1200, option number 2 500 to 1500, option number 3 700 to 1600 and option number 4 600 to 900. So correct option is 700 to 1600 kilometer is the approximate length in kilometer of a tsunami wave. सुनामी जब भी आती है तो अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो होती है उसकी वो कितनी तक हो सकती है किलोमीटर्स में? तो वो होती है 700 टू 1600 किलोमीटर में अप्रॉक्सीमेट उसकी लेंथ पाई गई है सुनामी में. नंबर 5. व्हेन डिड द सुनामी डिजास्टर अकर इन जापान? सुनामी जापान में कब आई थी? ऑप्शन नंबर ए on 26th November 2008, option B on 28th October 2010, option C on 8th January 2010 and option D on 11th March 2011. So correct option is option number D. On 11th March 2011, the tsunami disaster occurred in Japan. Number 6. Which pollution should be reduced for reducing the possibility of drought? कौन सा पोल्यूशन है जिसे हम रिड्यूस करना चाहिए ताकि जो ड्रफ की पॉसिबिलिटी है वो ना हो? ऑप्शन नंबर 1 रिवर, ऑप्शन नंबर 2 एटमॉस्फेरिक, ऑप्शन नंबर 3 वाटर एंड ऑप्शन नंबर 4 लैंड. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. Atmospheric pollution should be reduced for reducing the possibility of drought. Now we will see filling the blanks. Number 1. An earthquake is caused due to internal dash in the earth. Earthquake कब होता है? जब internal earth में disturbance हो तब earthquake होता है. So what is the answer? Disturbance. An earthquake is caused due to internal disturbance in the earth. Now number 2. The maximum effect of an earthquake is near the dash on the surface.
नाउ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अर्थक्वेक का कहाँ पर होता है या कहाँ पर पाया जाता है? तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है अर्थक्वेक का वो पाया जाता है नियर द एपिसेंटर ऑन द सरफेस. What is the answer? Epicenter is the answer. The maximum effect of an earthquake is near the epicenter on the surface. Number 3, the effect of an earthquake depends on its dash. So जो अर्थक्वेक का इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर निर्भर होता है या किसके ऊपर डिपेंड होता है? सो आंसर इज इंटेंसिटी. सो what is the answer? Answer is intensity. The effect of an earthquake depend on its intensity. उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना डीप है, उसके ऊपर वो डिपेंड होता है. नंबर 4, the origin of an earthquake is known as dash. Now this is the important question. अर्थक्वेक का जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हाइपोसेंटर. The origin of an earthquake is known as hypocenter. Okay, so now see this image carefully. Now, where is the epicenter? Epicenter is here. And where is the focus? Now, this is your focus point. Now, this focus is known as a hypocenter. What is known as a? Wait. This point is known as hypocenter. Okay, so where the hypocenter occur? Hypocenter always occur in the interior side of the earth. Okay, now interior side में जब hypocenter होता है जहाँ पे, उसके आसपास में सेस्मिक वेव्स क्रिएट होती है. कौन सी? सेस्मिक वेव्स. क्लियर एवरीवन? वेयर द हाइपोसेंटर इज? हाइपोसेंटर इज इन इंटीरियर साइड ऑफ द अर्थ, जिसे हम फोकस कहते हैं, और उसके एग्जैक्टली ऊपर आता है हमारा एपिसेंटर. नाउ नंबर 5, फॉरेस्ट रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड ड्यू टू डैश. फॉरेस्ट रिसोर्सेज किसकी वजह से पूरी तरह से तबाह हो जाता है? सो योर आंसर विल बी फॉरेस्ट फायर. जब फॉरेस्ट फायर होता है तब फॉरेस्ट रिसोर्सेज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है. नंबर 6, ड्यू टू लैंडस्लाइड डैश रेलवे गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रीक्वेंटली. लैंडस्लाइड के द्वारा कौन सी ऐसी रेलवे लाइन है जो हमेशा बंद हो जाती है? सो योर आंसर विल बी द कोंकण रेलवे. ट्रू और फॉल्स? नंबर 1, the effect of an earthquake depend on its speed. So this statement is false because earthquake का जो इफेक्ट होता है उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं होता. तो किसके ऊपर डिपेंड होता है? उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है. सो इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन इट्स स्पीड. फॉल्स बिकॉज इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी. नंबर 2, heavy gases below the lava push it downward. So this statement is also false statement because heavy gases below the lava push it upward डायरेक्शन में वो गैस को पुश करता है. चाहे कौन सी भी गैसेस इंटीरियर साइड ऑफ द अर्थ में जो भी गैसेस प्रेजेंट होती है वो उसे ऊपर की तरफ धकेलती है, ना कि नीचे की तरफ. नंबर 3, डायमंड आर फाउंड इन अ फ्यू वॉल्केनिक रीजन. नाउ डायमंड्स जो हमें मिलते हैं वो सिर्फ कुछ वॉल्केनिक रीजन्स पे ही क्या मिल सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शन जब भी होता है तो वहाँ पे डायमंड्स हम लोगों को मिल सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं. ऐसी कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि यही वॉल्केनिक रीजन पे हम लोगों को डायमंड मिलेंगे. ऐसा कोई ये जो स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ कोई ज़रूरी नहीं है. नंबर 4, द वेव्स ऑफ सुनामी आर हाई बट शॉर्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. जो वेव्स होती है सुनामी की वो बहुत लंबी होती है लेकिन बहुत छोटी होती है. नहीं, वेव्स जब अगर बड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सुनामी वो शॉर्ट नहीं होगी, वो बहुत ही लंबी होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 5,
मोर ट्री शुड बी ग्रोन टू प्रिवेंट ड्राफ्ट। ऑब्वियस सी बात है कि जब सूखा पड़ने की जैसी स्थिति आ जाती है तो क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि ड्राफ्ट जैसी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आए। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन टू प्रिवेंट ड्राफ्ट, सो ट्रू। नंबर 6, heavy damage is caused due to forest fire। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हम लोगों को फेस करना पड़ता है जब फॉरेस्ट फायर होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो योर आंसर विल बी ट्रू। नाउ मैच द पेयर करेक्टली। नंबर 1, सडन शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो जब एकदम से धरती का हिलना शुरू हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। नंबर 2, फर्टाइल लावा। जब लावा निकलता है तो उसे क्या कहते हैं हम, वॉल्केनो। नंबर 3, पावरफुल एंड डिवास्टिंग सी वेव्स। बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत बड़ी बड़ी जब सी वेव्स आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी। नंबर 4, द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। जब बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है वाटर का रिवर में तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लड। नंबर 5, डैमेज टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जब फॉरेस्ट रिसोर्सेज जब डैमेज हो जाता है तो किसके वजह से होता है, फॉरेस्ट फायर के वजह से। नंबर 6, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। जब खाने पीने की प्रॉब्लम आने लगती है या उसकी शॉर्टेज पड़ने लगती है, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू ड्रफ के कारण होता है। सो ड्रफ के लिए हम लोगों ने अभी एक ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट पढ़ा है कि मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन टू प्रिवेंट ड्रफ। सो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ट्रीज ग्रो करने चाहिए ताकि हम ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाए। Now answer the following question in 1 or 2 sentences. Number 1, what is an earthquake? Earthquake क्या होता है? Answer, due to sudden movement and pressure in the interior of the earth, the weaker portion of the crust shakes and this is called earthquake. एकदम से sudden movement होना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में प्रेशर हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रेशर होना और जो क्रस्ट का वीक पोर्शन है वो हिलने लगता है, उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। नंबर 2, व्हाट इज एपिसेंटर? एपिसेंटर क्या चीज़ होती है? आंसर, नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या है? ये एकदम पास वाली वो जगह है जहाँ पे फोकस होता है। फोकस मैंने बताया, फोकस का मतलब होता है जहाँ पे हाइपोसेंटर होता है अर्थक्वेक का, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। वो एग्जैक्टली उसके ऊपर होता है। नंबर 3, विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक? कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है? आंसर, द अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड इन सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ ये जो सेस्मोग्राफ है ये एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेस्मिक वेव्स जो होती है उसको स्टडी करता है। उस सेस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्या करता है, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। किस चीज़ की? अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। नंबर 4, हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स आर देयर, विच आर दे? कितने तरीके के अर्थक्वेक होते हैं और कौन से होते हैं? आंसर, देयर आर 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक एंड दे आर वॉल्केनिक, टेक्टोनिक एंड प्लूटोनिक। नाउ 3 तरीके के अर्थक्वेक होते हैं। कौन से? एक वॉल्केनिक होता है, टेक्टोनिक होता है एंड प्लूटोनिक होता है। ये तीनों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। नंबर 5, व्हाट इज वॉल्केनिक माउंटेन? वॉल्केनिक माउंटेन जो होता है वो क्या होता है? नाउ दिस आर सम इमेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, sit carefully. This is the active volcano. ओके, सो अंदर जो गैसेस, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं वो ऊपर की तरफ
प्रेशर देते हैं, तो इसीलिए वो फट के लावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से बाहर निकलता है। नाउ दिस ऑल आर वॉल्केनिक माउंटेन्स। Answer: when a volcanic eruption take place, ashes, big boulders and magma etc. are deposited around the volcanic hole and a cone-shaped small hill is formed. Now जब भी volcanic eruption होता है तो जो भी ashes है, जो भी राख है, जो भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मगमा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है वो वॉल्केनिक होल के आसपास डिपॉजिट हो जाती है और एक कोन शेप में छोटा सा हील बना लेती है, हील को फॉर्म करती है। और जब भी फ्रीक्वेंट इरप्शन रेज द हाइट ऑफ हील एंड टर्न इनटू अ वॉल्केनिक माउंटेन, तो धीरे धीरे जैसे इरप्शन होते रहता है तो वो एक माउंटेन का शेप ले लेता है जिसे हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने इमेजेस में देखा है, एक डॉर्मेंट वॉल्केनो होता है और दूसरा कौन सा होता है, एक्टिव वॉल्केनो होता है। दो तरीके के वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। नंबर 6, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द वॉल्केनिक इरप्शन। नाउ वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण क्या क्या है। आंसर: देयर आर टोटल 4 reasons for the volcanic eruption and they are: first one is temperature in the interior of the earth. Now 4 reasons होते हैं volcanic eruption होने के, 4 कारण होते हैं। तो पहला कारण जो होता है वो है जो टेम्परेचर होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में वो सडनली बढ़ जाता है। टेम्परेचर के वजह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मग्मा। जब लिक्विड मग्मा बनना शुरू होता है तब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स। जब गैसेस का बनना शुरू होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में और कुछ वाटर वेपर्स क्रिएट होने लगती है तब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है। नंबर 4, मग्मा टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हॉट लिक्विड रॉक जैसी चीज़ें हमारे अर्थ के सतह पर पहुंच जाती है तब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, जो हॉट लिक्विड को हम क्या कहते हैं, मग्मा। नंबर 7, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर देयर, वेयर आर दे। ना कितने तरीके के वॉल्केनोज होते हैं और कौन से होते हैं। सो आंसर इज देयर आर 3 टाइप ऑफ वॉल्केनोज। 3 तरीके के वॉल्केनोज होते हैं। दे आर एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। नाउ नंबर 1 इज एक्टिव वॉल्केनो एंड सेकेंड वन इज डॉर्मेंट वॉल्केनो एंड थर्ड वन इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। नाउ दिस इमेज इज अ डॉर्मेंट वॉल्केनो। ये जो इमेज है ये कौन सा है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है। दिस विल बी योर डॉर्मेंट volcano. Now second, now this is your active volcano. Okay, and this will be your extinct volcano. So clear? What is a dormant volcano look like? Now dormant volcano is look like this, active volcano is this and extinct volcano is this. So clear? Number 8, what is tsunami? Tsunami क्या होता है? Answer: due to volcanic eruption or an earthquake within the ocean, a very huge and strong and abnormally long waves are generated. They are called tsunami. नाउ वॉल्केनिक इरप्शन के कारण या तो फिर अर्थक्वेक के कारण समुद्र के अंदर जो बहाव होने लगता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगता है और बहुत ही बड़े बड़े उसमें से जो लहरें होती है उसकी वो बहुत ही बड़ी बड़ी होने लग जाती है, तब उसे हम सुनामी कहते हैं। नाउ दिस आर द इमेजेस ऑफ द सुनामी। सी, जब ओशन में बहुत ज़्यादा बहाव हो जाता है पानी का तो किस तरह से सुनामी आती है। नंबर 9,
विच एरियाज एक्सपीरियंस लैंडस्लाइड मोर फ्रिक्वेंटली एंड वाई? कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है और क्यों होता है? आंसर, लैंडस्लाइड्स अकर मोर इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल एंड इन टेक्टोनिक जोन। लैंडस्लाइड जो होता है वो ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो बहुत ज़्यादा हो और वो टेक्टोनिक जोन हो। दिस इज सो बिकॉज द सर्फेस ऑफ द रॉक्स आर ब्रोकन ड्यू टू हैवी रेनफॉल और ड्यू टू एन अर्थक्वेक। नाउ ये इसलिए होता है क्योंकि रॉक का जो सरफेस होता है, जो रॉक होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो टूट के नीचे गिरने लगते हैं। या तो उसका कारण होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब ऐसा होता है, या तो अर्थक्वेक होता है तब ऐसा होता है। नंबर 10, बाय विच अदर नेम्स आर साइक्लोन नोन? और कौन से ऐसे नाम हैं जो साइक्लोन के हैं? आंसर, साइक्लोन आर नोन एज स्ट्रोम्स एंड व्रिलविंड। साइक्लोन को और क्या क्या बुलाया जाता है? या तो स्ट्रोम भी कहा जाता है या व्रिलविंड भी कहा जाता है। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफली। नंबर 1, व्हाट इज अ फ्लड? विच एरियाज आर मोर अफेक्टेड ड्यू टू फ्लड? फ्लड क्या होता है और कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे फ्लड का ज़्यादा असर होता है? आंसर, ड्यू टू हैवी कंटिन्यूस रेनफॉल इन द माउंटेनियस रीजन। बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, या तो कंटिन्यू बारिश हो रही है माउंटेन रीजन में, इसके कारण ड्यू टू ब्रस्टिंग ऑफ डैम और ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो इन अ ग्लेशियल एरियाज। या तो डैम का टूट जाना, या तो फिर ग्लेशियल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे स्नो का मेल्ट होना। वाटर फ्लो विद ट्रिमेंडियस स्पीड, दिस इज कॉल्ड फ्लड। जब पानी का बहाव नदी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी फ्लड होता है। लो लाइंग एरियाज along the river beds are mostly affected by the floods. Now river beds जो रिवर के पास वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। नंबर 2, what is a drought? ड्रफ क्या होता है? Answer, a drought means the non-occurrence of rains. Such a condition is created when there is no rainfall or very little rainfall during rainy season. It is called drought. Now drought जो होता है मतलब सूखा पड़ जाना बेसिकली। तो सूखा कब पड़ता है? जब बारिश बिल्कुल ही ना हो, रेनी सीजन भी हो तो भी बारिश नहीं होती है, उसे ड्रफ कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि फार्मिंग नहीं हो पाती, तो शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, पानी की कमी हो जाती है, तो शॉर्टेज ऑफ फूड, ग्रेन, वाटर एक्सेट्रा इज क्रिएटेड। ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है। एंड द अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो ड्राइज अप। और जो अंडरग्राउंड में जो वाटर हम जमा करके रखते हैं वो भी सूखना चालू हो जाता है। इस तरीके की जो सिचुएशन होती है उसे ड्रफ कहा जाता है। नंबर 3, व्हेन इज अ स्ट्रोम क्रिएटेड? नाउ स्ट्रोम कब क्रिएट होता है? आंसर, व्हेन अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर लैंड एंड सी पावरफुल विंड्स बिलो टूवर्ड्स दिस एरिया फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन. When these winds blow powerfully along with the rainfall, a storm is created. Now एक तूफान आता है तो वो किस तरह से आता है? स्ट्रोम किस तरह से क्रिएट होता है? जब लो प्रेशर होता है लैंड पे या तो समुद्र के किनारे पे, विंड के द्वारा, बादल के द्वारा जब एक लो प्रेशर बनता है तो सराउंडिंग रीजन में वो स्ट्रोम बनना शुरू हो जाता है। Number 4, what is a forest fire? In dense forest, dry branches of larger tree come into friction due to each other frequently due to winds. Now, forest fire क्या होता है? Answer, एक dense forest में जब ब्रांचेस जो होती है वो सूख जाती है, सूखी लकड़ी होती है या तो ब्रांचेस होती है वो एकदम से सूख जाती है, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उनकी, तो वो एक फ्रिक्शन क्रिएट करने लगती है एक दूसरे के साथ में, और एक बार नहीं वो बार बार ऐसा फ्रिक्शन क्रिएट होने लगता है। दिस जनरेट फायर एंड
स्प्रेड फास्टर विद इन द फॉरेस्ट, और ये फ्रिक्शन जो होता है वो फायर को जनरेट करता है और उससे एकदम फायर कैच हो जाती है पूरे फॉरेस्ट में। फायर अकर ड्यू टू अदर रीजन्स ऑल्सो, और जो आग होती है वो किसी और रीजन्स की वजह से भी क्रिएट हो सकती है। सच अ फायर इज कॉल्ड फॉरेस्ट फायर, इस तरीके की जो आग लगती है उसे हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। मच डैमेज इज कॉज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, बहुत सारे डैमेज होते हैं फॉरेस्ट फायर की वजह से। नंबर 5, कैन द डिजास्टर मेंशन इन दिस यूनिट बी कॉल्ड जोग्राफिकल इवेंट, अब जब डिजास्टर होता है उसे क्या हम मेंशन कर सकते हैं एक जोग्राफिकल इवेंट के द्वारा? आंसर, yes, the disaster given in this unit can be called geographical event. ऑफ कोर्स जो भी डिज़ास्टर है जो क्रिएट होते हैं इन यूनिट में उसे हम जोग्राफिकल इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी, फ्लड, ड्रफ, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा आर द डिजास्टर विच अकर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो दे कैन बी कॉल्ड एज अ जोग्राफिकल इवेंट। नाउ जो भी डिज़ास्टर है, ये सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर है ये हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी, फ्लड, ड्रफ, लैंडस्लाइड और बहुत सारी चीज़ें जो भी डिज़ास्टर होते हैं वो हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे होते हैं, इसीलिए हम उन्हें जोग्राफिकल इवेंट कह सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, what benefits would you get if you live in a volcanic region? क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे अगर आप वॉल्केनिक रीजन पे रह रहे हैं? राइट एनी 5 पॉइंट। आंसर, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा। नाउ फर्स्ट वन इज ड्यू टू सच एन इरप्शन अ लार्ज लेयर ऑफ मग्मा स्प्रेड्स ऑन द सरफेस एंड मग्मा सॉइल इज फॉर्म। अब इरप्शन के द्वारा क्या होता है, एक लेयर बन जाती है मग्मा की हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, और मग्मा की जो सॉइल है मिट्टी की तरह वो फॉर्म होने लग जाता है। नंबर 2, दिस मग्मा सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड इज़ यूजफुल इन एग्रीकल्चर, और ये जो मग्मा सॉइल होता है ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। नंबर 3, अबंडेंट क्रॉप फ्रॉम द पोटेशियम बेस्ड सॉइल ऑन द वॉल्केनिक स्लोप, और बहुत सारे क्रॉप्स जो होते हैं पोटेशियम से बने हुए होते हैं, ये किसके को द्वारा होते हैं, जो मग्मा सॉइल में जो हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं वॉल्केनिक स्लोप पे, तो ये जो क्रॉप वहाँ पे कल्टीवेट होते हैं उनमें बहुत सारा पोटेशियम होता है जो हमारे लिए बेनिफिट होता है। नंबर 4, प्रीशियस मिनरल लाइक टंगस्टन, मर्क्यूरी, टिन, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, बहुत सारे हम लोगों को वहाँ पे आसपास मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि टंगस्टन, मर्क्यूरी, टिन, जिंक, एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल हम लोगों को वो रीजन में मिलते हैं। नंबर 5, व्हेन द मग्मा सॉलिडिफाइड्स in the volcanic pipe and carbon comes under the heavy pressure, it turns into diamond। जब मग्मा एकदम से सॉलिडिफाइड हो जाता है वॉल्केनिक पाइप्स जो होते हैं उसके अंदर, और कार्बन जो होता है वो एक हैवी प्रेशर के अंदर आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, डायमंड में फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे रीजन में हम लोगों को डायमंड ईजिली मिल सकते हैं। नंबर 6, एट अ फ्यू प्लेसेस इन वॉल्केनिक रीजन there are hot water springs which are useful in curing certain skin disease and killing germs। now ऐसे बहुत सारे places होती है volcanic region के आसपास जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, और वो गर्म पानी हमारे स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और वो क्या करता है, जितने भी जर्म्स होते हैं उनको वो ख़त्म करता है। नंबर 7, स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट फ्रॉम वॉल्केनो आर नोन एज अ लापिली। छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं जब वॉल्केनो इरप्ट होता है उसके द्वारा छोटे छोटे पत्थर जो उससे बाहर निकलते हैं उसे हम कहते हैं लापिली। दिस कैन बी यूज्ड बाय मोल्डिंग एंड गिविंग देम अ डिज़ायर शेप। नाउ ये इस तरीके के जो पत्थर होते हैं इनको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं और एक अलग से शेप दे सकते हैं। नंबर 2, what efforts should be made to prevent drought famine from occurring। now ऐसे कौन से efforts हम डाल सकते हैं ताकि सूखे पड़ने जैसी
नौबत ना आए। आंसर, फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन अगेंस्ट ड्रॉप फेमिन। नाउ ऐसे यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं जिससे सूखे पड़ने जैसी जो गंभीर स्थिति है वो क्रिएट ही ना हो। नंबर 1, एवरी ईयर मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड एंड क्योर्ड। नाउ हर साल नए नए पेड़ पौधे हम लगाएं और उनका ध्यान अच्छे से रखें। नंबर 2, प्रिवेंट द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोगों को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे एटमॉस्फेयर में। नंबर 3, वेल शुड बी डिपेंडेंट और शुड बी रिचार्ज टू गेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर इरिगेशन। वेल को बनाना चाहिए ताकि हम एक हमेशा पानी उसमें भरा हुआ रहता है और हमारे पीने के लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर सपोज़ करो कि बारिश नहीं आती है तो जो कुएं का पानी होता है वो हम पीने के लिए रख सकते हैं। नंबर 4, वाटर शुड बी स्टोर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स अक्रॉस स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम। नाउ वाटर जो होता है उसे स्टोर किया जाता है ताकि अगर डैम्स जो है वो बने हुए हो तो उससे जो पानी है वो हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। और डैम कहाँ पे होते हैं? छोटे छोटे जो रिवर्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, उसके आसपास अगर बनाए जाए तो पानी को स्टोर करके रखा जा सकता है। नंबर 5, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू स्टोर रेन वाटर टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर वॉल्यूम। नाउ ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स हम लोगों को करने चाहिए ताकि रेन वाटर जो है वो हम ग्राउंड वाटर मतलब अंदर धरती के अंदर हम उसे बचा के रख सकें। ठीक है। नंबर 6, लेंथ ऑफ कैनल्स अटैच टू मेन डैम शुड बी इंक्रीज। जो लेंथ का कैनल का जो लेंथ होता है, जो डैम को अटैच होता है, उसकी लेंथ को अगर हम बढ़ा दें तो पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में हम स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर 7, लेक शुड बी मेड डीपर टू स्टोर मोर रेन वाटर। जो लेक होता है उसे हम बहुत ही डीप बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम स्टोर करके रख सकें। सो ये सारे प्रिकॉशन हैं कि सूखा नहीं पड़ने के लिए, ड्रॉप फेमिन जैसी प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये सारे प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 5, नेचुरल डिज़ास्टर।